Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, I will tell you about the salient features of US Constitution. Let's start. US Constitution is the oldest constitution in the world. It is the fundamental law of the land. It has served as the supreme law of the United States since taking effect in 1789. The number one feature is written constitution. It is the oldest, briefest written constitution in the world. It consists of a preamble and seven articles running into 4,000 words with 10 to 12 pages. Number two is rigid constitution. It means it is not a flexible constitution. It is one of the most rigid constitution, which means for amendment in constitution there is a difficult procedure has to be followed. Otherwise you cannot change, you cannot amend the constitution. Number three is popular sovereignty. In America, people are sovereign. They are the main source of sovereignty. So popular sovereignty means that the people are the ultimate source of authority of their government. The people are the highest political authority in a democracy. People are the highest political authority in America. In US, the people have delegated their powers to the government and the government owes its authority to the will of the people. The principle of popular sovereignty is stated in the preamble of the constitution. ये सेंटेंस उसमें अंदर गिवन है जिसका मतलब है कि वी आर द पीपल, हम लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं. वी आर द powerful, we are the sovereign, we the people do ordain and establish this constitution for the United States of America. So sovereignty belongs to people in America. Number four is bicameral legislature. There are two houses. Number one is House of Representative and the other is Senate. The Constitution of USA provides for bicameral legislature, two houses in center. According to Article 1, all legislative powers are vested in Congress. Congress is most powerful house in the USA. Number 5 is separation of power. वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि हर जगह है. डॉक्ट्राइन ऑफ पावर की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ पावर की बात करें तो दे आर थ्री मेन इंस्टीट्यूशंस. इसी तरह यूएसए में भी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइडेड पावर बिटवीन द थ्री पिलर्स और थ्री इंस्टीट्यूशंस. नंबर वन इज कांग्रेस, जिसको हम लेजिस्लेशन कहेंगे. प्रेसिडेंट जैसे एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है. सो इन तीन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पावर जो है वो डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है. नंबर 6 इज चेक एंड बैलेंस. इट इज द फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. द सिस्टम ऑफ check and balance laid down by the separation of powers prevents the misuse of power. The powers are provided in such a way that it provides a check upon institutions. चेक एंड बैलेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर बंदे के ऊपर या हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक नज़र रखता है, उस पर एक चेक रखता है कि कोई भी अपनी पावर को, कोई भी पावर्स को मिसयूज़ ना कर सके. कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्मूथली रन करे, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द पावर्स आर प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स अ चेक अपॉन इंस्टीट्यूशंस. सो इंस्टीट्यूशंस को चेक करने के लिए वहाँ पर ये बाकायदा जो है सिस्टम है. नंबर 8 इज प्रेसिडेंशियल system. The Constitution provides for a presidential form of government. Article 2 of the US Constitution provides the powers, election and their matter related to the president. President is elected for a term. Article 2 के अंदर ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब आर्टिकल 2 के अंदर गिवन है. वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंट जो है 4 ईयर्स के लिए जो है वो इलेक्ट होता है. उसका टेन्योर जो है 4 ईयर. अब है फेडरल सिस्टम. यूएस के अंदर जो है फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है. हमारे आप यहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मींस दैट पावर आर डिवाइडेड अमंग स्टेट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स. नेक्स्ट है रिपब्लिकनिज्म. द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर अ रिपब्लिकन सिस्टम व्हिच प्रेसिडेंट एज द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. ये जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट है. The Constitution derives its authority from the people and is the supreme law of the land. Next है Bill of Rights. The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. ये एक अलग टॉपिक भी है Bill of Rights. The Bill of Rights provide for the rights of a person's property, liberty, freedom of speech, press, religion and assembly. ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे. Bill of Rights जो है ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स भी ये जो है वो है, जिसके अंदर मेन जो फंडामेंटल राइट्स है वो बताए गए थे, जिसमें आप पर्सनस प्रॉपर्टी है, आज़ादी के बारे में, लोगों को बोलने की आज़ादी थी,
इस तरह की जितनी भी जो मेन फंडामेंटल राइट्स थे वो बताए गए थे, दिए गए थे। नंबर 11 इज ड्यूअल सिटीजनशिप। बेसिकली अमेरिका जो है वो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे। एक अमेरिकन तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक वो कि जिनके पास सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका है, यानी अमेरिकन सिटीजनशिप है, और उसके अलावा जहाँ की उनकी डोमिसाइल है, जो डिफरेंट वहाँ पे स्टेट्स हैं जो वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं। नंबर 12 इज सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स। जब भी अमेरिका के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है, तो वो क्या करेगा कि जब भी वो एक नया प्रेसिडेंट आएगा तो वो पब्लिक ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, यानी न्यू पब्लिक ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो व्हेन अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही डज द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। इफ इन इलेक्शन अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, he dismisses the public officers' barriers and make fresh appointments. So this is the topic in which we discuss the salient features of the US Constitution. So I hope you understand this topic. Thank you.